عمر 19 سال تھی۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ان دنوں گرمیاں شروع ہو گئی تھی، اسی لیے ہمیں کالج سے چھٹیاں مل گئی تھی۔ روز کی طرح آج بھی پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں اپنے بسترے پر آرام کر رہی تھی۔ پورا وجود تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پورا بدن اکڑ چکا ہو۔ میں اپنے بسترے پر لیٹ کر سکون کرنے لگی اور ہاتھوں سے اپنے سر کو مساج دینے لگی۔ میرے کڑکڑانے کی آواز سن کر میرا بھائی افسان کمرے میں آیا۔ کہنے لگا کہ کیا ہوا نائمہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی کام بہت ہوتا ہے، امی تو سارا کام میرے سر پر ڈال کر چلے جاتی ہے۔ کالج سے چھٹیاں کیا ہوئی ہے، سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی ہے، اوپر سے ملازمہ بھی چھٹی پر ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ گھر کا کام۔ میری یہ بات سن کر افسان ہنسنا اور میرے پاس بیٹھ گیا، پھر کہنے لگا میری پیاری بہنا کوئی بات نہیں، میں بھی تمہارے لیے دودھ لے کر آتا ہوں، اسے پیو گی تو سکون آ جائے گا۔ میں نے افسان کی بات سنی تو مسکرانے لگی، کہنے لگی بس تم کھانا باہر سے لے آنا، میں تھوڑی دیر سکون کروں گی تو میری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ افسان کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈا دودھ کا گلاس کے ساتھ وہ کمرے میں آیا۔ مجھے افسان پہ بہت پیار آیا تھا۔ دنیا میں بہت کم ہی ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں اسے ڈھیروں دعائیں دینے لگی اور اس کا لایا ہوا دودھ پینے لگی۔ دودھ پینے کے بعد میں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیٹ گئی۔ افسان کہنے لگا کہ چلو میں تمہارے سر دبا دیتا ہوں، تم سو جاؤ۔ وہ میرے سرہانے بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگا۔ مجھے بھی سکون آنے لگا، درد کی شدت بھی کم ہونے لگ گئی تھی۔ مجھے آنکھیں نم کر سونے لگی۔ کب میں گہری نیند میں چلی گئی پتہ ہی نہ چلا۔ کئی گھنٹے تک میں سوتی ہی رہی تھی۔ میری آنکھ امی کی آواز پر کھلی تھی۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو سر بڑی طرح جھومتا تھا۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا، بڑی عجیب سی بات تھی۔ امی ابو آفس سے واپس آ چکے تھے، شاید تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ مجھے اٹھ کر جیسے ہی 2 قدم چلی تو مجھے چکر آ گئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اگر دیوار پر ہاتھ نہ رکھتی تو یقیناً گر جاتی۔ میں فرش ہو کر باہر آئی تو کھانے کے میز پر سب بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میں جا کر افسان کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھانے میری پلیٹ میں ڈالنے لگا اور پھر امی کو کہنے لگا کہ امی آپ نائمہ پر کام کا بوجھ تھوڑا کم ڈالا کرے، اگر ملازمہ نہیں آ رہی تو اس کی جگہ کوئی اور رکھ لے، یہ بیچاری سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہے، دیکھو تو اس کا رنگ پیلا پڑ چکا ہے۔ میری حالات واقعی خراب ہو چکے تھے، میں کافی بھی بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ میری امی ابو دونوں ہی جاب کرتے تھے، چونکہ صرف ابو کی جاب سے گھر چلانا بہت مشکل تھا، اوپر سے ہماری پڑھائی کے اخراجات بھی کچھ کم نہ تھے، اسی لیے میری امی بھی اسی کمپنی میں جاب کرتی تھی جہاں بابا کرتے تھے۔ میں اور افسان کالج جاتے تھے، مگر امتحان کی وجہ سے چھٹیاں تھیں، اسی لیے ہم گھر ہی رہنا پڑتا تھا۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ پچھلے کچھ دنوں سے افسان میرے ساتھ زیادہ ہی اٹیچ ہو چکا تھا۔ جب سے مجھے چھٹیاں ہوئی تھی وہ میرا بہت خیال رکھنے لگ گیا تھا۔ اگر میں گھر کا کوئی کام کر رہی ہوتی تو آ کر میری مدد کرنے لگتا، اگر میں تھک جاتی تو میرا سر دبا دیتا۔ میں اسے منع کرتی مگر کہتا کہ نہیں، تم تھک چکی ہو، اتنا کام کرتی ہو، میرا حق ہے، میں تمہیں سکون پہنچاؤں گا۔ میں بھی خاموشی سے لیٹی رہتی، مگر ایک رات جو ہوا میرے ہوش اڑا گیا تھا۔ افسان کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے؟ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے، آہستہ سے چلتے میرے بسترے کے قریب آیا۔ برسی میں سوئی رہی تھی مگر میرا ذہن بیدار تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دی۔ کمرہ اندھیرے میں دھت ہوا تھا۔ جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا، بس کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ میں سونے سے پہلے ہمیشہ دروازہ بند کر کے سوتی تھی، پھر خود کیسے کھل سکتا تھا؟ میں نیند سے بھری آنکھوں سے اٹھی اور دروازے کو لاک کرنے لگی۔ دروازہ لاک کرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کر بسترے پر سو گئی۔ میری آنکھ بند تھی کہ ایک مرتبہ پھر مجھے قدموں کی
चलने सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिस्तर पर मेरे पास बैठा हो, वो अपने हाथों से मेरी जान बढ़ रहा हो। लेकिन मैंने पलटकर पीछे देखा, कोई भी नहीं था। मुझे घबराहट होने लग गई थी। मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑन करी, दरवाजा खोलकर बाहर देखा, मगर वहां पर कोई नहीं था। आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। मुझे पानी की तलब हुई तो कमरे का दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकले। ऐसे वक्त अफसन भी अपने कमरे से बाहर निकला था। मुझे देखकर कहने लगा कि क्या बात है, आप अभी तक जाग रही हो? मैं उसे बताने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। पानी पीकर दोबारा कमरे में आने लगी। फौरी अफसन भी मेरे पीछे मेरे पास आ चुका था। कहने लगा कि आपको डर लगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं आपके पास सो जाता हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं, मेरी वजह से तुम्हें अपनी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में सो जाओ। मगर अफसन जिद करने लग गया कि आपको मैं अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। आपकी तबीयत खराब हो सकती है, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। चलो आप सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर वो तो मेरी कमरे में ही सोने पर रजा था। मैं बेड पर जाकर सो गई और उसने तकिया उठाकर सोफे पर रख लिया और वहीं पर सो गया। उस रात मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई इस सराहने बैठकर मुझे बहुत देर तक देख रहा हो। उसने मेरे बालों को भी सहराया हो, मेरे चेहरे पर उंगलियां फेरी हो और मैं पुरसुकून सो रही। मुझे सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। अगली सुबह उठी तो मेरा मूड बड़ा ही खुशगवार था, मगर जैसे ही अपने वजूद पर गौर किया तो मैं घबरा गई। ये तो शुक्र था कि मैंने दुपट्टा से अपने जिस्म को ढक रखा था, जो कि सोते हुए मेरी कमीज बेतरतीब हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई थी कि यूं आज से पहले मैं कभी इस तरह गाफिल होकर नहीं सोई थी। आज अफसन भी बहुत खुश लग रहा था, न जाने क्या वजह थी। मैंने उसे पूछा, बोला मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम वगैरह निपटेर कर मैं बैठी तो अफसन तेल लेकर मेरे सर पर आ गया। कहने लगा कि नाइमा, आपके बाल खोलो, मैं आपके सर में मालिश कर देता हूँ। मुझे उसकी ये हरकत बहुत अजीब लगी थी। मैंने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूम फिर आओ, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर वो तो खुद ही मेरे बाल से कैचर उतार कर कहने लगा कि आप भी नखरे मत किया करो, किस्मत वालों को मिलते हैं। मुझ जैसा भाई, आपका भाई, जब आपके इन खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको मसला ही क्या है। चलो आए, मैं आपके सर का मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून आएगा। वो मुझे वहाँ से उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वो मेरे सराहने बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। सुफियान मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाया कहता कि आप इतनी प्यारी है, आपको देखकर दिल करता है आप हमेशा ही यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें और आपको के लाड उठाता रहूं। अफसन मेरे मसाज कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में तो जैसे जादू था। मसाज से मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में घूमने लगी। तेल की खुशबू बड़ी ही जबरदस्त थी। मैंने अफसन से पूछा कि ये कौन सा ऑयल है। कहने लगा कि ये बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए है। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये इन बालों के लिए ही बनाया है। इसकी ये बात बहुत ही प्यारी होती थी। मुझे समझ नहीं पाती थी कि ये बात किस तरह कैसे कर रहा है। फिलहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद की वादियों में खोई जा रही थी। एक मरतबा फिर मैं चकी थी, मगर जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा वजूद दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत ज्यादा वजन मेरी टांगों पर रख दिया गया हो। पूरा बदन में दर्द की लहर सी जा रही थी। मैं धीरे से उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने वजूद पर गौर किया तो मुकम्मल बिखरा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसी ने नहला दिया हो। मेरे कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी भी थी। आखिर ये सब कुछ क्या होने लग गया था। मैं बड़ी मुश्किल से बेड से उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझसे चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपने हालात समझ नहीं पा रही थी। मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है।
बड़ी मुश्किल से चल कर वॉशरूम गई और फ्रेश हुई थी। अपने हालात पर गौर किया तो ऐसे लगा जैसे मैं सोई नहीं बल्कि कोई मुश्किल वाला काम कर रही थी। मैं जब कमरे से बाहर निकली तो मुझे खुसफुस की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था जैसे अफसन किसी से बात कर रहा हो। घर में मैं तो और मेरा, उसके अलावा वो और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था। मैं पहले तो किचन में पानी पीने लगी मगर तब तक आवाज़ आना बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब अफसन बैठक से निकला तो उसके हाथ में काफ़ी पैसे थे। जब को देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बिलहर पड़ थी। अगले ही पल अफसन की भी नज़र मुझ पर पड़ गई थी। मुझे देखकर कहने लगा, नईमा आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई और हड़बड़ाकर पैसे अपने पैंट की जेब में डाल रहा था मगर मैं उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर बोली, अफसन इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो नजर झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं तो बख्शिश में बताता था कि इसने ये पैसे अब्बू को तो नहीं निकाले। मैं सख्ती से बोली तो वो सिसकी लेकर कहने लगा कि ये पैसे अब्बू के एक दोस्त कई सालों पर कर्जा उतारने के लिए आया था। मैंने सोचा था कि इनसे मोबाइल लूंगा लेकिन इसने पैसे मुझे थमाए। मैंने कहा कि हाँ तुमने अच्छा किया। अगर घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम बचाइए पैसे उनको देने के मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। अफसन शर्मिंदा था मगर मैंने वो पैसे रात को अब्बू को दे दिए थे। अफसन ने मेरे साथ कोई बात नहीं की थी। आज वो तो सोने भी जल्दी चला गया था। अगली रोज मैं किचन में काम कर रही थी जब अफसन अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। मैं जितनी हैरान हुई इतनी कम थी क्योंकि वो अपने दोस्तों को सीधे टीवी लॉन्च में ही ले आया था। मैं उस वक्त दुपट्टा उतार कर बर्तन धो रही थी जब वो सब हंसते हुए अंदर दाखिल हुए। मैंने फौरी दुपट्टा किया था और फिर अफसन को बुलाने लगी कि ये क्या तरीका है। तुम जानते भी हो इस वक्त अम्मी अब्बू घर नहीं है फिर भी इन लोगों को घर लेकर आए हो। अफसन कहने लगा कि ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं। अच्छा सा सालन तैयार करो। मेरे बहुत खास दोस्त है। वो मुझसे काफी नाराज हो चुके थे मगर अब मैं क्या करती। ये करना तो जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वो बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे अफसन का रवैया पर हैरान रहती थी। छोटी सी बात पर आखिर वो ऐसे कैसे बदला ले सकता है। मैंने खाना मेज पर रखा दिया। मैंने गौर किया था कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वो सब मर्द थे, अफसन की उम्र से बड़े थे, अजीब तरह से घूर रहे थे जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह चुकी थी। जैसे ही वो गए तो मैं अफसन पर फूट पड़ी कि वो दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वो तो अगले ही पल वो मेरे गाल थमा कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है आप में। नहीं आएंगे। इस बारे में अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताएंगी। मगर आप ऐसा कैसा लड़का था ये। कभी प्यार निछावर और करने लगता तो कभी चढ़ने लगता। फिलहाल मैंने हामी में सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे अफसन की हरकत कुछ मशूक सी लगने लग गई थी क्योंकि वो अब मुझे अजीब ही तरह से देखने लग गया था। उस रोज भी मैं जब अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने जब बिल्कुल कर आंखें खोली तो अफसन मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया मगर वो कहने लगा कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूँ जिसे आपकी इतनी फिक्र है। अम्मी अब्बू को तो काम से ही फुर्सत नहीं। खैर मैं भी पुरसकून होकर चुकी थी। आंखें बंद की तो सोने लगी। अफसन के हाथों की मसाज से तो मैं नींद की वादियों में खोने लग गई थी मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश गुम हो गए थे। मेरा सारा बदन थकन से चूर हो रहा था। बिस्तरे की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, बेड पर एक शर्ट भी पड़ी थी और साथ ही एक मेल परफ्यूम भी पड़ा था। आखिर ये सामान किसका था। मैं तो कितनी देर कुछ
बोल ना सकी। सर में इस कदर शदीद दर्द की लहर उठ रही थी कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे तो किसी ने बेहोशी की दवाई दे दी हो। मुझे अपने पास खुसफुस की आवाज़ आ रही थी, मगर ये कौन बोल रहा था मैं पहचान ना सकी। मुझे तो सिर्फ अफसन की आवाज़ में लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अफसन मेरे कमरे में मौजूद हो, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो सारा मंजर मेरे नज़रों के सामने घूमने लगा। मैंने आंखें खोलकर सबसे पहले बेड की जानिब देखा, जहां पर शर्ट और परफ्यूम पड़ी थी, मगर अब तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरे हालात बहुत अजीब थे। मैं भी बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ ना सकती। घर में सिवाय मेरे और अफसन के और कोई तो था भी नहीं। मेरे सोचने के बाद आखिर ऐसा भी क्या होता था कि मेरा पूरा वजूद पानी से शर्म हो जाता। ऐसा लगता जैसे मुझे पानी से नहला दिया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस्म दर्द से चूरता था, रंग भी बिल्कुल पीला पड़ चुका था। दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। उस रोज़ भी अफसन मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ चुकी थी। जहन में अजीब सवाल आने लग गए थे। तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी। मेरी तबीयत देखकर अम्मी भी परेशान हो गई। कहने लगी कि मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी लेकर तुम्हें डॉक्टर से चेकअप करवाती हूँ। आखिर ये क्या मसला है, तुम देखो तो कैसे जर्द पड़ चुकी हो। उस रोज सारी रात मैं उल्टी करती रही, सांस फूल रहा था, ठीक से सो ना सकी। अगली रोज मेरी अम्मी माँ बाप हमेशा की तरह फिर से अपने काम पर जा चुके थे। उन्हें तो शायद मेरे कोई परवाह ही ना थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड में ये आया था कि मैं हामला हूँ। आखिर ये सब कुछ मेरे साथ कौन कर सकता था? अफसन मेरा भाई था, लेकिन फिर जहन में ये बात आई कि अफसन को तो मैं अपने सगा भाई समझती हूँ, जबकि ये बात किसी से लुकी छुपी नहीं है कि अफसन मेरा सौतेला भाई है। वो मेरी माँ की औलाद है, जब मैं तो अपने अम्मी की पहली शादी से थी। इसी तरह की बात मुझे कुछ गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रही थी कि किस मुंह से अपने माँ बाप को इस बारे में बताऊं। अफसन मेरे पास बैठा माँ बाप के सामने कभी मेरे हाथ पकड़ता तो कभी मेरी गाल खींचने लगता। अगले ही रोज मैं अस्पताल गई और ऑपरेशन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का DNA कर दे। डॉक्टर ने रिपोर्ट पकड़ाई तो मैं तो जैसे सांस लेना भूल चुकी थी। मुझे समझ आ रही थी वैसे कुछ नहीं था, ये बच्चा तो किसी और का था। लेकिन ये कौन कर सकता है मेरे साथ? अम्मी अब्बू घर से गए तो मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। उस रोज वो फिर मेरे पास आया और मेरे सर में मसाज करने लगा। मैं भी खामोशी से लेटी रही। बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, मगर शायद उस तेल में बेहोशी की दवा थी। जैसे सूंघती ही मैं बेहोश हो जाती थी। घंटों बाद मुझे होश आता था। माँ बाप भी घर आ चुके होते थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी सामने की तो मेरे पैरों के जैसे ज़मीन निकल गई थी। अफसन मेरे कमरे में अपने अबाश दोस्तों को ला रहा था जो मेरे साथ बदकिरदारी कर रहे थे। अपना मकसद पूरा करने के बाद अफसन को उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। ये बात मुझे पर किसी क़यामत की तरह टूटी थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अफसन को गिरबान से पकड़ा और थप्पड़ों की बारात उसके मुंह पर कर दी। अफसन खुद भी बर्बाद हो रहा था। अम्मी अब्बू भी वहां पर आ गए। अब्बू गुस्से से मेरे हाथ पकड़ चुके थे कि होश में तो हो, क्या कर रही हो, पागल हो चुकी हो, क्यों मार रही हो अफसन को? मैंने रोते हुए वो वीडियो उन्हें दिखा दी कि ये जलील इंसान मेरे साथ ये सब कुछ करवाता है। वीडियो मेरे माँ बाप ने देखी तो वो फर्श पर गिर चुके थे। अब्बू को भी उस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अफसन को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। गुस्से से कहने लगा कि मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की ज़रूरत रहती थी। लोगों इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोई जा रही थी। अब्बू ने उसे इतना मारा कि वो वहाँ लेटते हुए गया, मगर
जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़ा कर घर से भाग गया और दोबारा कभी पलट कर इस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज़ था, जिसको मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर अफसर ने जिस कदर घटिया खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। यकीन आजकल के इस परफसन दौर में भाई ही होते हैं जो के सगे वालिदैन से हो किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना यकीनन बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शैतान परसतन मर्द हर वक्त उसे डालने में रहता है कि वो किसी न किसी बिनते हवा की इज्जत को नीलाम करे। तो मैं आप अपने तमाम देखने और सुनने वाले वालिदैन से यही गुजारिश करूँगी कि हमेशा अपनी बेटियों को साथ पर्दों में रखे और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला ना छोड़े। इस सारे मामले में आखिर गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसे कमाने के चक्करों में बच्चों से बिल्कुल ही गाफिल हो गए, या फिर मेरी के मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेले उस घर में रहती थी, इस हद से ज़्यादा इतबार करती थी, इसे अपना सगा भाई ही समझती थी। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुँच जाए।